अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट प्राइस लाइन और इनकम लाइन और बजट लाइन। सो actually the uh, original topic that we are discussing is finding out consumer equilibrium in accordance with ordinal view. So, as per ordinals, there are two tools of consumer equilibrium. The first tool is called as indifference curve. Within that, we have read about preferences of the consumers, which we plotted upon a graph, and that graph, uh, considering convex shaped curve, is called as indifference curve, and that curve basically represents the priorities, the preferences of a consumer about the purchase of goods like X and Y within his fixed income. And we know that upon indifference curve, the satisfaction level of a consumer remains same. It was the first tool that was given by the ordinal school to understand the concept of consumer equilibrium. However, the second tool about consumer equilibrium is price line or income line or budget line. Like into the second tool, we will be reading about the resources of the consumer. The resources of the consumer, um, according to the definition of Robbins, we all know that we being human beings have limited or scarce resources. So we also understand if we talk about the consumer, so consumers' resources is also or are also scarce. They are limited. So a consumer has to use his money income or fixed income in such a way that he could achieve maximum number of desires out of his total desires. So the price line will basically guide us about the capacity of a consumer to purchase goods, right? So physically, how capable a consumer is to purchase goods and services from the market by using his resources. So before to start about the definition of budget line, I would initiate my lecture from the equation of budget line. First of all, we have to understand that the income of the consumer should be spent upon two goods that we have already assumed within this model that consumer will only buy two goods, right? So the utility of the consumer depends upon consumption of X, like X is good X, and consumption of good Y, right? So after consuming these two goods X and Y, consumer will drive utility, right? So X and Y can be purchased by using his income I, right? So income will be divided into two segments, into two parts. The first part will be called as a proportion of income spent upon good X and proportion of income spent upon good Y. So if you would look at equation of budget line, within underneath the heading of budget line we have written, as we know that income equals I, it should be spent upon two following points, two following goods. Consumer will spend a part of his income on good X and he will also spend remaining part of his income on good Y. Therefore, the equation of budget line could be written as income equals proportion of income spent upon good X and proportion of income spent upon good Y. So we add both components, the first expenditures made upon good X and expenditures made upon good Y. We have to sum up the both components in order to get the total income. As we have already assumed that consumer will be spending his money income upon X and Y and he will be left with zero income. So we will not stop consuming income unless income reaches to zero. So
as we have already understood from the law of equimarginal utility, from those class activities, we come up with the conclusion that income should, the left income should be zero, the actual income should be spent fully, and consumer should come up with units of good X and good Y, at which the utility maximizing principle is satisfied, right? So these were the conclusions that we obtained after reading up the law of equimarginal utility. So keeping those informations or those points in your mind, I'm gonna discuss the idea of budget line over here. The assumption remains the same. The income should be spent fully upon the consumption of two goods or upon the buying of two goods, and the left income should be zero. Acha. So if the left income is positive, meaning that it is not fully utilized, a consumer will never be able to achieve maximum utility. The moment when income is zero, that point should be checked with whether the utility maximizing principle is satisfied or not. If utility maximizing principle is not satisfied, then this means that even although you have spent full income and the left income is zero, but the utility maximizing principle, if it is not satisfied, then the spending of complete income is useless. The reason is that we have not used income optimally, we have not used income efficiently, because the utility that we are obtaining or achieving is not a maximum utility. The reason behind it that the utility maximizing principle is not satisfied at here. So what should we do then? We should spend our money income in such a way that the income should be spent fully, the left income should be zero, and within that income we should come up with some units of X and units of Y, and by the end utility maximizing principle must be satisfied. If it is not, then we cannot say that the income is efficiently utilized. So this is the prerequisite condition while allocating your income upon the consumption of two goods. So we must allocate our income in such a way that it should be utilized efficiently. It should satisfy the utility maximizing principle. So let us understand the income is equals to proportion of uh, income spent upon good X plus proportion of income spent upon good Y. So what do we understand by proportion of income spent upon good X? Just imagine that you have purchased 10 units of X, and 1 unit of X 1 unit of X is available at price 50 rupees per unit, right? So you have purchased 10 units, 1 unit is available at 50 rupees. So if somebody raises a question that how many expenditures you have made upon good X, so every person can easily calculate that if somebody has purchased 10 units at price 50 rupees per unit, so if 1 unit is for 50 rupees, the 10 units will be of 500 rupees, right? So 50 multiplied by 10 equals 500 rupees. And similar is the case with good Y. If we have purchased 20 units of good Y and 1 unit of good Y is available at 25 rupees, so 25 is the price of good Y, multiply by quantity of good Y is 20. So 25 multiplied by 20 equals 500 rupees. So if somebody wants to know about my income, he would just simply add the expenditures that I've made upon the consumption of two goods, X and Y. So ultimately he would come up with my income's idea. So uh, income should be equals to 500 plus 500, like expenditures made upon X plus expenditures made upon Y. So the expenditures that I've made upon X is 50 multiplied by 10 equals 500 plus
I've purchased 20 units of Y. 20 multiplied by price of Y is 25. So 25 multiplied by 20 equals 500. So 500 plus 500 equals 1000. So 1000 is my income, right? So proportion of income spent upon good X can be calculated by multiplying the price of good X with quantity or units of good X. Similarly, the proportion of income spent upon good Y can be calculated by total expenditure made on good Y, and we can also multiply price of good Y with quantity or units of good Y. So in simplified form, we can say that price of X into units of X equals proportion of income spent upon good X, and price of Y multiplied by units of Y equals proportion of income spent upon good Y. So if you look at the following equation, if you look at this highlighted information, the total income is equals to the highlighted area, and instead of proportion of income spent upon good X, we have written price of good X multiplied by units of units or quantity of good X, and proportion of income spent upon good Y, we have written or we have replaced this particular information with price of good Y multiplied by units of good Y, and within these two informations we have a sign of plus. So price of X can be written as PX, units or quantity of good X can be written as X. So price of X multiplied by X, plus then we have written price of good Y as PY, and units or quantity of good Y as Y. So final equation of budget line can be written as I equals Px into X plus Py into Y. Px into X represents total expenditures made by the consumer on good X, and Py into Y shows total expenditures made by the consumer on good Y. So by adding the both expenditures of consumer, we can identify the income of the consumer. So this is the required equation of budget line. Now after finding out the equation of budget line, I'm going to solve it for good Y. So if somebody asks you to solve this equation for good Y, so how could you solve this equation for good Y? Simply by looking at the equation, we have to identify that what are the things which are upon the right hand side of the equality. तो यहाँ से आप देख लें कि y हमारा इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर है, और यहाँ से इस इक्वेशन में px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ये दो कंपोनेंट्स हैं इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर. हमें चूंकि इक्वेशन y के लिए सॉल्व करनी है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें पी एक्स इंटू एक्स चूंकि यहाँ पे एडिशनल है, इसको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं. चूंकि राइट हैंड साइड पर प्लस में मौजूद है, जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, चूंकि इक्वेशन है आई इक्वल्स पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, तो जब पी एक्स इंटू एक्स इक्वेशन के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो प्लस वाला कंपोनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, माइनस में. तो अब फाइनल फॉर्म क्या बनेगी, आई माइनस पी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स पी वाई इंटू वाई. अच्छा, मैंने ये कहा कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है y के लिए, तो इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास y के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मौजूद है विच इज प्राइस ऑफ y. अब ये y के साथ ये इंफॉर्मेशन चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है, सो हमें बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक पता है जो इंफॉर्मेशन इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर प्लस में मौजूद होती है वो इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाती है. जो इंफॉर्मेशन इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर माइनस में होती है वो इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरह इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर जो इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाती है. जो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रही होती है इंफॉर्मेशन या एक्सप्रेशन, वो इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. हमारे इस केस के अंदर प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय y है, यानी
y के साथ प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब ये इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगी तो वहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा जी, i माइनस प्राइस ऑफ x इनटू x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, सो इक्वल्स ये इंफॉर्मेशन किसके इक्वल होगी जी, y के। अच्छा, अब प्राइस ऑफ y चूंकि ओवरऑल डिवाइड हो रहा है तो इसको मैंने सेपरेटली डिवाइड कर दिया, i ओवर प्राइस ऑफ y माइनस प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y इनटू यूनिट्स ऑफ x इक्वल्स y। और इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है कि y इक्वल्स i ओवर प्राइस ऑफ y, ये येलो शेडेड में आपको नजर आ रहा होगा, y इक्वल्स I represents income, I over price of y minus price of x over price of y multiply by units of x। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन को जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे ये उसकी फाइनल फॉर्म आ गई। पहले हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है जिसको मैंने इनिशियली सिलेक्ट किया है और इसको येलो शेड से हाईलाइट कर दिया। ये क्या है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अब इस इक्वेशन को हमने चूंकि y के लिए सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो सेकंड, इसका शेड मैं जरा चेंज कर देता हूं ताकि डिस्टिंग्विश करना, जो ब्लू शेडेड इंफॉर्मेशन है ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन फॉर यूनिट्स ऑफ गुड y। ठीक है जी, इसको y के लिए सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इस इक्वेशन की तरफ गौर से देखें, अगर आपको बता दिया जाए कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, आपको ये भी बता दिया जाए कि गुड x की प्राइस क्या है और गुड y की प्राइस क्या है, तो ये एक्सप्रेशन जो y के लिए सॉल्व हुआ है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखें, चूंकि कंज्यूमर रैशनल है तो कंज्यूमर को ये पता है कि उसकी इनकम क्या है, उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो जब जब हम बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे हमें पता होगा कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस क्या है मार्केट में और प्रोडक्ट वाई की प्राइस क्या है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें ये मालूम ना हो कि हमारी इनकम क्या है, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस क्या और प्रोडक्ट वाई की प्राइस क्या है। सो बीइंग रैशनल कंज्यूमर हमें ये तीन इंफॉर्मेशंस का पता होगा, ठीक है। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उसमें कम से कम ये तीन इंफॉर्मेशंस गिवन होगी। अब आप लास्ट जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल से रिलेटेड हमने क्लास एक्टिविटीज की थी उनमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती थी उसमें आपको पता होता था कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस क्या है और इसी तरह प्रोडक्ट वाई की प्राइस क्या है। तो उस एक्टिविटी में भी कम से कम आपको ये चीजें गिवन होती थी। इसके अलावा आपको टेबल के अंदर टोटल यूटिलिटीज, मार्जिनल यूटिलिटीज वगैरह वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन और कुछ उनकी बेसिस पर सर्टेन क्वेश्चंस रेज किए जाते थे। तो मिनिमम इंफॉर्मेशन जो है कम से कम जो आपको गिवन होगी, इट शुड बी रिलेटेड टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है जी। अब यहां पर हमने एज्यूम कर लिया कि कंज्यूमर की इनकम जो है सपोज ये 10 रुपीज है, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस 2 रुपीज है और प्रोडक्ट वाई की प्राइस 1 रुपी है। सो इनकम की जगह हमने 10 सब्सटीट्यूट कर दिया, प्राइस ऑफ वाई की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, प्राइस ऑफ एक्स की जगह 2, प्राइस ऑफ वाई की जगह 1 और यूनिट्स ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएंगी। उसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया जी, 10 over 1 आंसर इज 10, 2 over 1 आंसर इज 2, तो 10 minus 2 into x, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है जी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्विकली बता दें, अदरवाइज मैं क्योंकि हमारा काम जरा लंबा है, मैं चाह रहा हूं आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर बाद आपसे टेकअप करता हूं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है y इक्वल्स 10 minus 2x, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें, अच्छा अभी तक मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दे दूं मैंने किया क्या है। मैंने एक्चुअली स्टार्ट लिया है इक्वेशन ऑफ बजट लाइन से। मैंने ये कहा कि इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या है कि जी कंज्यूमर की इनकम को हमने बेसिकली एक्स और वाई पर स्पेंड करना है। एक्स पर किए जाने वाले एक्सपेंडिचर्स को हम लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, और वाई पर किए जाने वाले एक्सपेंडिचर्स को हम लिखते हैं प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई। सो हमने क्या किया, एक्स और वाई के एक्सपेंडिचर्स को आपस में प्लस किया जो कि कंज्यूमर की इनकम के इक्वल है। सो आई इक्वल्स प्राइस ऑफ एक्स इनटू यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू यूनिट्स ऑफ वाई। इसको आप येलो शेडेड इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं या ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं।
जिसको हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन का। इसके बाद मैंने क्या किया, इस इक्वेशन ऑफ बजट लाइन को सॉल्व कर लिया y के लिए। जब इसको y के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया जी ये ब्लू शेड में, जो कि क्या है, y इक्वल्स आई ओवर प्राइस ऑफ y माइनस प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y इनटू यूनिट्स ऑफ x। इस एक्सप्रेशन में मैंने कंज्यूमर की इनकम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, प्राइस ऑफ y को सब्स्टिट्यूट किया और प्राइस ऑफ x को सब्स्टिट्यूट किया। हमने एज्यूम किया इनकम 10 के इक्वल है तो यहाँ i की जगह पर हमने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने एज्यूम किया प्राइस ऑफ y 1 के इक्वल है तो प्राइस ऑफ y की जगह आ गया 1, सो 10 ओवर 1 इक्वल्स 10। इसी तरह प्राइस ऑफ x को हमने एज्यूम किया ये 2 है, जबकि प्राइस ऑफ y हमने एज्यूम की थी वो 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ गया जी 2। तो 10 माइनस 2 और x एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, ये देखिए y इक्वल्स 10 माइनस 2x। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने करना क्या है कि अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए कि आपको x की डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाए, मिसाल के तौर पर x की वैल्यू 0 प्रोवाइड कर दी जाए तो आपके पास y की एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर x की वैल्यू हो जाए 1, अगर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 0, 2 इंटू 0 आंसर इज 0, 10 माइनस 0 आंसर इज 10। तो पता चला जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 10। इसी तरह x की वैल्यू अगर यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आंसर इज 2, 10 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा जी 8। तो जब x की वैल्यू हो जाए 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू कैलकुलेट होती है। हाँ, अगर x की वैल्यू को चेंज करते जाएं तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ठीक होगी बात। तो पता ये चलता है कि इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू के वेरी करने से y की वैल्यू भी वेरी करेगी, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। तो अब इसी बेसिस पर हमने स्केड्यूल डेवलप कर लिया। तो स्केड्यूल क्या है जी, स्केड्यूल ऑफ बजट लाइन ये आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा न्यू पेज पर लेके जाता हूं ताकि आपके लिए व्यू करना रिलेटिवली आसान हो जाए। देखें जी, सबसे पहले कॉलम नंबर 3 को गौर से देखें, बाकी इंफॉर्मेशन को अभी भूल जाएं कि बाकी कुछ लिखा हुआ है। कॉलम नंबर 3 में क्या मेंशन्ड है जी, हेडिंग के तौर पर यूनिट्स ऑफ गुड y और किसके इक्वल है जी, y इक्वल्स 10 माइनस 2x। ये हमने अभी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। कॉलम नंबर 1 में मैंने एज्यूम कर लिया कि ये कोई कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से a b c d e f, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस x और y के यूनिट्स के आपस में बन सकते हैं। इसके बाद मैंने कॉलम नंबर 2 में यूनिट्स ऑफ गुड x प्लेस कर दी। यूनिट्स ऑफ गुड x मैंने एज्यूम किया कि जी मिनिमम हो सकता है 0, और उसके बाद अगर वैल्यू इसकी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन बढ़ती जाए तो y के डिफरेंट वैल्यूज आती चली जाएगी। तो इनिशियली y की वैल्यू 10 किसके इक्वल आई, जब 10 आई तो इसके बैक एंड पर x की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की गई वो कितनी थी, 0। तो देखें जब हमने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 10। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं y इक्वल्स 10 माइनस 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 का आंसर आ जाएगा 0, तो 10 माइनस 0 आंसर आ जाएगा जी 10। इसी तरह जब x की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट की, y की वैल्यू क्या आ गई जी, 0 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट हो गया, 2 इंटू 1 आंसर इज 2, 10 माइनस 2 आंसर इज 8। इसी तरह x की वैल्यू जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी जी 10 माइनस 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 4 आंसर इज 6। ठीक है जी। अच्छा, अब ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। फिर इसी तरह x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है जी, आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने y की डिफरेंट वैल्यूज हाईलाइट कर दी। कब कब, जब x की डिफरेंट वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। बात समझ आ गई। अच्छा, अब x की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला
कि जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू क्या होगी जी 10, जब x की वैल्यू 5 होगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मत इससे अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई कि जब x मिनिमम होगा y मैक्सिमम है वहां पे, जब x मैक्सिमम है वहां y मिनिमम है। यहाँ मिनिमम से अंडरस्टैंडिंग क्या है जी इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसके बाद कॉलम नंबर 4 हमने जनरेट किया डेल्टा y, कॉलम नंबर 5 जनरेट किया डेल्टा x। अच्छा, डेल्टा x और डेल्टा y किस तरह कैलकुलेट हुए देखें जी। पहला देखते हैं जी, डेल्टा y इक्वल्स y1 माइनस y0, यानी करंट में से प्रीवियस माइनस करना है। करंट अब क्या है जी, इस पॉइंट पर खड़े हुए कि जब हम x का 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे, फर्ज कर ले x1 जो है ये हमारे पास करंट है, तो जब हम x का 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वहां y1 कितना है जी हमारे पास, तो डिफरेंस क्या होगा, करंट अगर y1 है तो प्रीवियस हो जाएगा y0, तो y1 माइनस y0। y1 क्या है जी हमारे पास, ये आप वैल्यू अच्छे तरह देख सकते हैं, y1 है 8 और y0 क्या है जी 10, तो 8 माइनस 10 आंसर इज -2। इसी तरह अगर करंट हो जाए x की वैल्यू 2, तो फिर यानी y वहां पे y2 होगा, तो y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 6 है, y1 8 है, 6 माइनस 8 आंसर इज -2। इसी तरह 3 के ऊपर y3 माइनस y2, तो 4 माइनस 6 आंसर इज -2। फिर जब y 4th पॉइंट पर चला जाएगा तो फिर क्या डिफरेंस, डेल्टा y कैसे बनेगा, y4 माइनस y3, यानी करंट माइनस प्रीवियस, तो y4 माइनस y3, y4 है हमारे पास 2 और y3 है हमारे पास -4, सॉरी 4, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास -2 आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या कहेंगे, डेल्टा y इक्वल्स, अगर y 5th पॉइंट पर है तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, y5 करंट हो गया और इससे प्रीवियस कौन सा है y4, तो y5 माइनस y4, y5 हमारे पास 0 है, y4 हमारे पास 2 है, तो 0 माइनस 2 आंसर इज -2। तो आप कॉन्टिन्यूसली देख सकते हैं कि डेल्टा y हमारे पास मुसलसल सेम आ रहा है, -2 -2 -2 -2 -2, जबकि डेल्टा x किसके इक्वल है, डेल्टा x अगर हम फर्स्ट पॉइंट पर देख रहे हैं तो x1 माइनस x0, x1 हमारे पास क्या जी 1, x0 क्या जी 0, 1 माइनस 0 आंसर इज +1। तो देखें इससे ये पता चला पहले कॉम्बिनेशन बी से, यानी अगर सेकंड कॉम्बिनेशन पे जाएं कि हमने x का 1 यूनिट गेन किया है और y के कितने यूनिट सैक्रिफाइस किए हैं 2। कॉम्बिनेशन सी में देखें जी, x का 1 यूनिट गेन करने के लिए y के कितने यूनिट सैक्रिफाइस किए हैं 2। कॉम्बिनेशन डी में देखें सेम सूरत हाल है, ई में सेम सूरत हाल है, एफ में सेम सूरत हाल है। तो x का 1 यूनिट गेन करने के लिए y के ईच टाइम कॉम्बिनेशन बी से लेकर कॉम्बिनेशन एफ तक 2 यूनिट्स ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट y की सूरत में x गेन करने के लिए कॉम्बिनेशन बी से एफ तक सेम है, यानी हर दफा हम y की कॉस्ट 2 2 2 2 2 एंड 2 बियर कर रहे हैं 1 यूनिट ऑफ x ऑब्टेन करने के लिए। अच्छा, अब हम इंडिफरेंस कर्व में MRS कैलकुलेट करते थे जो कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहलाई। इसी तरह बजट लाइन के अंदर स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके इक्वल होगी जी, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। वहां डेल्टा y ओवर डेल्टा x स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व थी जिसको हमने MRS ऑफ x फॉर y पढ़ा। यहाँ पर ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है जो कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x के इक्वल है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, डेल्टा y की वैल्यू पहले पॉइंट पर कितनी थी -2 और डेल्टा x क्या था +1, -2 डिवाइडेड बाय +1 आंसर इज -2 एंड सो ऑन। आप कंटिन्यूअसली देखें ये वैल्यू -2 -2 -2 -2 ही है। ठीक होगी बात। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है जी, ये भी कांस्टेंट है, स्टेबल है, सेम है, और इसकी वैल्यू क्या है जी नेगेटिव, यानी -2 एंड माइनस रिप्रेजेंट्स दैट स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज नेगेटिव, राइट। एंड बट स्लोप ऑफ बजट लाइन को अगर हमने प्लॉट करना है या बजट लाइन को अगर हमसे प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो आप इसकी स्लोप को गौर से देखें, ये -2 -2 -2 -2 -2। इन डिफरेंस कर्व में ये रेट मुसलसल क्या होता था, कम, पहले -5 फिर -4 फिर -3 फिर -2 फिर -1 एब्सोल्यूट टर्म्स में। चूंकि वहां रेट कम हो रहा था इसीलिए सर्कल का कॉन्वेक्स वाला शेप हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की सूरत में आ गया।
जबकि इस केस में आप देखें कि एक यूनिट एक्स का गेन करने के लिए वाई के 2 यूनिट्स ईच टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है जी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट कर्व जो है उसकी शेप क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ अगर आप बजट लाइन को प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो इसकी शेप आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगी। अच्छा, अब मैं ये स्केजुअल यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी और इसको एक्सेल शीट के अंदर जाके पेस्ट करता हूँ और आपको वहां पर बजट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, जस्ट गिव मी अ 1 second so that I could share you a new Excel sheet on which we have graph of budget line. आप ये देख सकते हैं जी, कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, ये 6 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ए कॉम्बिनेशन पर यूनिट ऑफ एक्स 0 एंड यूनिट ऑफ वाई 10 है, बी पर यूनिट ऑफ एक्स 1 है और यूनिट ऑफ वाई 8 है, फिर 2 6, फिर 3 4, फिर 4 2 एंड फिर 5 0। ठीक है जी, चेंज इन गुड एक्स यानी डेल्टा एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? +1 +1 +1 +1। डेल्टा वाई हमारे पास किसके इक्वल है? -2 -2 -2 -2। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या आ गई जी? ये हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन कैलकुलेट होगी, यानी डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन आ गई। अब मैंने क्या किया, इन यूनिट्स को सिलेक्ट कॉपी किया। ठीक है जी, और फिर इसके बाद इनको प्लॉट करने के लिए इंसर्ट डायग्राम में जाके स्कैटर और यहाँ से हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यही एग्जैक्टली आपके पास ग्राफ ड्रॉ हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये बजट लाइन का ग्राफ आपके पास आ रहा है। अलोंग दी एक्स एक्सिस आपके पास क्या है जी? यूनिट्स ऑफ एक्स। अलोंग दी वाई एक्सिस क्या है जी? आपके पास यूनिट्स ऑफ वाई। और टाइटल इसका क्या है जी? टाइटल अभी इसका सेट कर लेते हैं। ये क्या है जी? बजट लाइन। ठीक है, और प्राइस लाइन और इनकम लाइन। ठीक है, अलोंग दी वाई एक्सिस हमारे पास ये क्या है? स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है यूनिट्स ऑफ वाई। इसी तरह अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या है जी? यूनिट्स ऑफ एक्स। और उसके बाद यहाँ पॉइंट्स हमने लेबल किए हुए, तो पॉइंट्स सबसे पहले इसको ब्लैक कर लेते हैं जी ताकि उसके साथ मैच कर जाए। फिर इसके ऊपर हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं लेबल्स की सूरत में। ऐड डेटा लेबल्स, ये डेटा लेबल्स आ गए। फिर इनका नंबर भी हम थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट लेबल, इसको अबव कर लें तो इस शेप में आ जाता है। नहीं, अबव ठीक नहीं है, फॉर्मेट डेटा लेबल। अच्छा जी, अगर इसको लेफ्ट कर लें तब भी ठीक नहीं नज़र आ रहा, राइट कर लें तब भी ठीक नहीं है, अबव कर लें तब भी, बिलो कर लें। चलें जी, बिलो भी तंग करेगा, लेफ्ट पे तंग कर रहा है, राइट पे ठीक है। अच्छा, इस पे अगर मैं 7 यूनिट्स ऑफ एक्स भी प्लॉट कर दूं तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखें, इसका फॉन्ट साइज एडजस्ट कर लेते हैं जी। ले जी, ये फॉन्ट साइज आ गया आपके पास। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, ये मैंने लेबल्स कर दिए। इसके अलावा आपके लिए एक दो पॉइंट्स और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ यानी एक्स एक्सेस का लेबल ऐड कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इधर हमने टाइप कर दिया। ले जी, ये यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आ गया हमारे पास।
एक्स के यूनिट्स को प्लॉट कर दिया हमने, इनको भी सेट कर देते हैं जनाब वाला की सहूलियत के लिए। लेआउट लें जी, ये आ गया हमारे पास। इसका फॉन्ट हम सेट कर देते हैं जी। ये हमारे पास डायग्राम बजट लाइन की सूरत में ड्रॉ हो गया। ठीक हो गई बात। अब ये है, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और इसको जाके वर्ड पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप आ जाएं जी वर्ड की फाइल पर। ये वर्ड की फाइल है जी आपके पास। आप बेशक ये वाली फाइल देख लें या इसकी जगह ये वाला ग्राफ देख लें, दोनों ही आपके लिए हैं। जो सा आपको सूट करे वो बेहतर है। मैं पुराने वाला ही रहने देता हूँ, मुझे पुराने वाले के साथ कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वाला डेवलप करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अभी तक मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन ऑफ बजट लाइन आपको एक्सप्लेन कर दी। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ बजट लाइन से स्केड्यूल ऑफ बजट लाइन बता दिया। स्केड्यूल ऑफ बजट लाइन से मैंने आपको स्लोप ऑफ बजट लाइन बता दी कि वो नेगेटिव होगी, और उसके बाद बजट लाइन की शेप बता दी। ठीक है, कि वो नेगेटिव शेप है लेकिन स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगी। ठीक है, अब इसके अलावा अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ बजट लाइन की तरफ। बजट लाइन की डेफिनेशन को समझाने के लिए यहाँ स्केड्यूल से मैं 2-3 बातें आपको बता दूं कि बजट लाइन बेसिकली अगर आप इसके ग्राफ के अंदर इसको ऑब्जर्व करें तो ये ग्राफ क्या है जी, ये कॉम्बिनेशन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इसको और एफ है। 6 कॉम्बिनेशन हैं ए से लेकर एफ तक। कॉम्बिनेशन ए भी जो है एक्स और वाई के यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्बिनेशन बी जो है वो भी एक्स और वाई के यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्बिनेशन सी भी एक्स और वाई के यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई बी एफ बी। ठीक है, तो ये लाइन जो है बजट लाइन, ये बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें यूनिट्स ऑफ एक्स और यूनिट्स ऑफ वाई है। जबकि कंज्यूमर को ये पता है, कंज्यूमर को क्या पता है कि कंज्यूमर को ये पता है कि उसकी इनकम क्या है। ठीक है, ये आपको गिवन है। कंज्यूमर को ये पता है प्रोडक्ट एक्स की प्राइस क्या है, और कंज्यूमर को ये भी पता है कि प्रोडक्ट वाई की प्राइस क्या है। तो अब अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे कि बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और यूनिट्स ऑफ गुड वाई के। जबकि कंज्यूमर को अपनी इनकम के बारे में मालूमात है, प्रोडक्ट एक्स के बारे में मालूम, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस के बारे में मालूमात है और प्रोडक्ट वाई की प्राइस के बारे में मालूमात है। तो अब अगर आपसे डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आप बआसानी बजट लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया आपके लिए। बजट लाइन शोज different combinations of units of good x and units of good y where the consumer is given with his money income I, price of good x px and price of good y py। क्लियर हो गई बात। तो कितनी आसान डेफिनेशन है कि बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि गुड एक्स और गुड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करती है, जबकि कंज्यूमर को अपनी इनकम, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस और प्रोडक्ट वाई की प्राइसेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ओके जी, अब since to obtain each unit of good x we are leaving। अच्छा जी, इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें फर्दर एक बात ऐड की गई है, यहाँ पे लिख देते हैं जी।
in order to obtain each unit of good X, as we are leaving same and same units of good Y, therefore the resultant budget line is downward sloping and is in straight line shape because consumer is facing constant opportunity cost. ठीक होगी बात? As consumer is facing constant opportunity cost. ले जी, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। अब अभी तक क्या हो गया, प्राइस लाइन या बजट लाइन की डेफिनेशन हो गई, इक्वेशन हो गई, इसका शेड्यूल हो गया, शेड्यूल के बाद इसका ग्राफ हो गया। ठीक होगी बात, चारों चीजें हो गई। अब आखिरी पॉइंट इसके बजट लाइन के अंदर रह गया जी, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने सिर्फ स्लोप को अंडरस्टैंड करना है। बहरहाल एक क्लास में बच्चों ने डेरिवेशन की बात की तो मैंने बता दी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी, क्विकली उनको बता दी और छोटी सी 2-4 स्टेप्स के अंदर है। अदरवाइज हमने ये फाइनल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमने ये जो ब्लू शेडेड इंफॉर्मेशन है, हमने सिर्फ इसको याद रखना है। बाकी चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं करना। सिर्फ अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है, यानी स्टेप सॉल्व कर दिए हुए, आप कंप्लीटली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करूंगा। बजट लाइन की इक्वेशन है जी, आई इक्वल्स प्राइस ऑफ एक्स इंटू यूनिट्स ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू यूनिट्स ऑफ वाई। इस बजट लाइन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन डेल्टा के साथ। ठीक है जी, डेल्टा जब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा डेल्टा आई इक्वल्स डेल्टा, और आगे राइट हैंड साइड पर जो बजट लाइन का एक्सप्रेशन है वो एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, हमें ये पता है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी हो ना 4x, यानी 4 हमारे पास जो कोएफिशिएंट है x का वो कांस्टेंट है। जब इस 4x का डेरिवेटिव लिया जाए तो डिफरेंशियल ऑपरेटर x के साथ मल्टीप्लाई होता है, और 4 चूंकि कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आ जाता है। तो अब डिफरेंशियल ऑपरेटर किसको कहते हैं जी, d को, यानी जो चेंज निकाल रहा होता है। ठीक है, d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हमारे इस केस में डेल्टा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो मैंने यहाँ पर डेल्टा के साथ जब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड वाली जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ प्राइस ऑफ एक्स इनटू एक्स लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ एक्स की मैंने आपसे कहा वैल्यू आपको गिवन होगी, तो फर्ज कर लें इसकी वैल्यू हमें जो गिवन थी वो 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x यानी प्राइस ऑफ एक्स डेल्टा से बाहर आ गया। यहाँ एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं नीचे वाले में, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो प्राइस ऑफ एक्स डेल्टा से बाहर आ गया। अब ये डेल्टा सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन एज इट इज। प्राइस ऑफ वाई अगेन डिफरेंशियल, प्राइस ऑफ वाई भी हमें गिवन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आ गया, डेल्टा वाई आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा सिर्फ कांस्टेंट ही था, यानी डी बाई डी एक्स इंटू 4 यानी इनकम की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। तो अब डेरिवेटिव ऑफ 10 यानी किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव या किसी भी कांस्टेंट नंबर के अंदर आने वाली चेंज हमेशा किसके इक्वल होती है, 0 की। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा आई चूंकि फिक्स्ड है 10 है, यानी कंज्यूमर को फिक्स्ड इनकम गिवन थी, तो वो फिक्स्ड इनकम का जब डेरिवेटिव लोगे वो 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया जी 0, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद इक्वल देखें, प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू डेल्टा वाई। अब इस एक्सप्रेशन को जो कि 0 इक्वल्स प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू डेल्टा वाई आ रहा है, इसको डेल्टा वाई के लिए सॉल्व कर लें। सेम तरीका है जी, प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर रहने दिया, प्राइस ऑफ वाई इंटू डेल्टा वाई को एक्सप्रेशन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। राइट हैंड साइड पर प्राइस ऑफ वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड पर आके माइनस में कन्वर्ट हो गया। यानी ये एक्सप्रेशन आपके सामने जो ब्लू शेड में है नीचे की तरफ, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, माइनस प्राइस ऑफ वाई इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब चूंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं डेल्टा वाला एक्सप्रेशन एक साइड पे कर लूं और प्राइस ऑफ
प्राइसेस वाला एक्सप्रेशन एक साइड पे कर लो। तो मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पर आके डिवाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई हो रही थी, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गई। तो ये आंसर क्या आ गया जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस का साइन है साथ, इक्वल्स प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो बेसिकली डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, किसके इक्वल आ गई जी, माइनस प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई के। ठीक है जी, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है और यही फाइनल फॉर्म हमें रिक्वायर्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां से अनहाईलाइट कर देता हूं ताकि आगे चले। ले जी, यहां तक काम कंप्लीट करने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, जो फाइनल टॉपिक है हमारा, जो कि हार्डली 5 से 7 मिनट का टॉपिक है। ये है जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने दोनों टूल्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पढ़ लिए, इंडिफरेंस कर्व यानी फर्स्ट टूल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एंड बजट लाइन जो कि सेकंड टूल ऑफ इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। दोनों टूल्स कंप्लीट होने के बाद अब इन दोनों टूल्स की इंटरेक्शन है। जी मिनाहिल बेटा, मैं अभी आपका क्वेश्चन टेकअप करता हूँ। अभी तक दो टूल्स हो गए हमारे, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। अब दोनों टूल्स सेपरेटली अंडरस्टैंड कर लिए। दोनों टूल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब दोनों की इंटरेक्शन है। ठीक है, जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा इंडिफरेंस यानी बजट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव होगा, या अचीव होगा या अचीव नहीं होगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। चूंकि टॉपिक ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना है, तो आप देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी सूरत हाल बनेंगी जिनमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ये उस सिचुएशन के बारे में है जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में आगाह किया था कि मार्केट में जब भी हम बाइंग करने जाते हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि हमने अपनी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम डिजायर्स फुलफिल कर ली हैं और इससे कमाल हमारी लाइफ में बाइंग नहीं हो सकती थी इतनी इनकम के साथ, तो वो जो फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, वो जो मोमेंट्स ऑफ जॉय है, वो जो फीलिंग्स हैं जिसमें आप बहुत जबरदस्त फील कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कमाल हो गया, मजा आ गया। सो वो फीलिंग्स दर हकीकत इकोनॉमिक्स में अगर ट्रांसलेट करें तो आप डे टू डे रूटीन में ऐसी फीलिंग्स को कहते हैं यार कमाल हो गया, तो बड़ी मजेदार फीलिंग्स थी। तो वो मजेदार फीलिंग्स इकोनॉमिक्स में उसको कहते हैं यहाँ कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। और अगर ये फीलिंग्स प्रोड्यूसर की इकोनॉमिक्स में होंगी तो हम कहेंगे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। सो फीलिंग्स कंज्यूमर वाइज कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर फर्म के हिसाब से चले तो फर्म इक्विलिब्रियम होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड होती है। फर्म का इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हो गया। तो ये फीलिंग्स दर हकीकत इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम के साथ रिप्रेजेंट होती हैं। अब अगर इकोनॉमिक एजेंट कंज्यूमर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। अगर ये फीलिंग्स इकोनॉमिक एजेंट प्रोड्यूसर के लिए हैं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या फर्म इक्विलिब्रियम होगा, तो वहां फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। सो अब इस सिचुएशन को हम कंज्यूमर के रिस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका ग्राफ समझें। चले पहले डेफिनेशन बता देता हूं, डेफिनेशन के साथ फिर मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा ग्राफ को समझा के इसकी डेफिनेशन पे। अच्छा, पहला डेफिनेशन में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल व्यू can be achieved या could be achieved at a point where budget line of the consumer tangents to the higher possible indifference curve। यानी इसमें दो बातें की गई, क्या कि बजट लाइन क्या करे, budget line of the consumer tangents to his higher possible indifference curve। बजट लाइन क्या करे जी, टेंजेंट कर दे किसको, हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को।
अच्छा, इंडिफरेंस कर्व तो हमने पढ़ा। अब ये जो इजाफी वर्ड आ गया यहाँ पे, हायर पॉसिबल, ये क्या चीज है? ये हमने नहीं पढ़ा। हमने इंडिफरेंस कर्व तो पढ़ा, हमें नहीं मालूम कि हायर पॉसिबल क्या है। हायर पॉसिबल का मीनिंग भी अभी थोड़ी देर में समझ लेते हैं। सो बजट लाइन क्या करे जी? टेंजेंट करे किसको? इंडिफरेंस कर्व को। और वो इंडिफरेंस कर्व्स में से कौन सा इंडिफरेंस कर्व हो? हायर पॉसिबल। हर इंडिफरेंस कर्व हायर पॉसिबल नहीं होता। एक एक ही इंडिफरेंस कर्व एक वक्त में एक इनकम के साथ हायर पॉसिबल हो सकता है, यानी ऐसा इंडिफरेंस कर्व जहां कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड हो जाए। हर इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड नहीं होती, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा इंडिफरेंस कर्व जिस पर कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड हो जाए, या वहां पर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल सेटिस्फाइड हो जाए, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला होता है वो सेटिस्फाइड हो जाए, तो ऐसे इंडिफरेंस कर्व को हम क्या कहते हैं? हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। और मैंने कहा कि हर इंडिफरेंस कर्व हायर पॉसिबल नहीं होता और ना हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गई एक डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन क्या है जी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर, कौन सा पॉइंट है? वेयर एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या जी? वेयर एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो जाए जी? बिकम्स इक्वल टू, क्या हो जाए जनाबे वाला? बिकम्स इक्वल टू एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। यानी कौन से इंडिफरेंस कर्व की स्लोप एब्सोल्यूट स्लोप के इक्वल हो जाए जी? हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के। यहां पर हायर पॉसिबल को भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है जी। Absolute slope of budget line becomes equal to absolute slope of the higher possible indifference curve। अच्छा, जाहिर सी बात है, जहां बजट लाइन हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट कर रही है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां टेंजेंट होगा वहां बजट लाइन का जो स्लोप होगा, यानी टेंजेंट वाला पॉइंट जो है, जहां बजट लाइन का स्लोप होगा वही डिफरेंस कर्व का स्लोप होगा। तो दोनों के स्लोप जब एक पॉइंट पर दोनों ने टेंजेंट कर लिया, तो जहां टेंजेंट किया, अंडरस्टूड सी बात है, वहां दोनों के आपस में स्लोप भी इक्वल होंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या है जी? इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है जी? एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ द हायर पॉसिबल आईसी। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। ये किसके इक्वल होगा जी? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, वो क्या है जी? एम यू एक्स ओवर एम यू वाई, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके बराबर था? माइनस एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। तो चूंकि एब्सोल्यूट स्लोप है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। इसी तरह एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा जी, ये प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई होता है नेगेटिव में। चूंकि एब्सोल्यूट स्लोप है इसीलिए एब्सोल्यूट की जगह यहाँ पे क्या आ गया? प्लस, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्लस आ गया एब्सोल्यूट होने की वजह से, और राइट हैंड साइड पर भी प्लस आ गया। जहां ये हमारा ये एब्सोल्यूट स्लोप्स दोनों के इक्वल होंगे, दर हकीकत वहीं पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इसको मैंने सॉल्व किया जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये प्राइस ऑफ एक्स राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके क्या हो गया जी? डिवाइड। लेफ्ट हैंड साइड पर एम यू वाई डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो अब आपको ये जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है स्क्रीन पर, जो येलो शेड में है फाइनली, ये एक्सप्रेशन दर हकीकत इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल पढ़ के आए थे, एग्जैक्टली उसी तरह की शेप नजर आ रही है आपको। MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो बेसिकली ये क्या है? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल, या इसका दूसरा नाम क्या है? नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये दोनों चीजें हैं। तो आसान, मैं अब रिपीट कर देता हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां अचीव हो रहा है। नंबर वन, जहां बजट लाइन हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट कर रही है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है जी? जहां टेंजेंसी होगी, यानी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की टेंजेंसी का जो पॉइंट होगा, वहां दोनों मिले होंगे आपस में। जब मिल जाते हैं तो उसी पॉइंट से अगर इन दोनों का स्लोप यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो,
तो वो लाइन दोनों की, बजट लाइन की हो या इंडिफरेंस कर्व की हो, वो एक ही कॉमन लाइन होगी। तो वो कॉमन लाइन का मतलब ये है कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के स्लोप्स इक्वल हो गए। ठीक है, अब स्लोप्स हमें पता है दोनों के नेगेटिव्स होते हैं, तो हमने नेगेटिविटी को यानी नेगेटिव साइंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड एब्सोल्यूट ऐड कर दिया। तो हमने दोनों के कॉमन स्लोप्स को कैसे लिख दिया कि यहाँ पर दोनों के एब्सोल्यूट स्लोप्स आपस में इक्वल हो गए। इंडिफरेंस कर्व हायर पॉसिबल था, उसका जो स्लोप है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, और बजट लाइन के स्लोप को बोलेंगे एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन। चूंकि कॉमन है इसीलिए दोनों इक्वल है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में mu x ओवर mu y, चूंकि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व था। इसी तरह पी एक्स ओवर पी वाई स्लोप ऑफ बजट लाइन था एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया तो फाइनल फॉर्म बन गई mu x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल्स mu y ओवर प्राइस ऑफ y, और ये है हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म, और यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला भी है। इसके बाद आगे मेरे पास ग्राफ है जी। ग्राफ के लिए मैं आपके साथ ये दो छोटे छोटे ग्राफ शो करता हूं आपको, अभी आपको नजर आ जाते हैं। बस एक मिनट जी, मेरे दो ग्राफ्स रह गए हैं, मैं वो दोनों शो कर दूं आपको। नहीं जी, ये देखें स्क्रीन पे आपको ग्राफ विजिबल होगा जी। बी एल एक यानी एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इसके अलोंग दी एक्स एक्सिस वी हैव यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, अलोंग दी वाई एक्सिस वी हैव यूनिट्स ऑफ गुड वाई। बी एल रिप्रेजेंट्स बजट लाइन और आई सी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है। तो आप आई सी को देख सकते हैं, पॉइंट ई पर बजट लाइन को टेंजेंट कर रहा है। ठीक है जी, पॉइंट ई पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट कर रहा है। तो पॉइंट ई पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप की सूरत में होगी, तो हमें पता चलेगा पॉइंट ई पर दोनों का स्लोप क्या हो गया जी, इक्वल। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है जी, एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन। एब्सोल्यूट होने की वजह से इसको कैसे लिखा गया, mu x ओवर mu y इक्वल्स प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y। एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन है जी प्राइस ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ y, जबकि एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है जी, mu x ओवर mu y। अच्छा, यहाँ मैंने हायर पॉसिबल का वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि मैंने एक ही आईसी दिखाया है, एक आईसी के अलावा और आईसीज नहीं दिखाए यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको हायर पॉसिबल का वर्ड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हायर पॉसिबल वाला सिनारियो आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें अलोंग दी एक्स एक्सिस थोड़ा सा आगे बॉक्स में लिखा हुआ है mu x ओवर प्राइस ऑफ x इक्वल्स mu y ओवर प्राइस ऑफ y। ये बेसिकली क्या है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये तो है जी एक ग्राफ। ये है दूसरा ग्राफ, ये स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा। अब डायग्राम वही है, फर्क क्या है जी, दो फर्दर इंडिफरेंस कर्व्स मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। अच्छा, अब बेसिकली तीन इंडिफरेंस कर्व हो गए, IC1 IC2 IC3। IC1 हमें पता है जी इनकम 1 I1 के अंदर हम अचीव कर सकते हैं, IC2 हम I2 इनकम के अंदर अचीव कर सकते हैं, और IC3 हम इनकम 3 के अंदर अचीव कर सकते हैं। अब फर्ज कर ले मेरे पास इनकम है I2, कौन सी इनकम है, I2। क्या I2 इनकम के साथ फर्ज कर लें 20,000 इनकम है, 20,000 इनकम के साथ IC3 आता है जी 60,000 में। 20,000 की इनकम में मैं 60,000 की बाइंग कर सकता हूँ। इंडिफरेंस कर्व 3 को देखें, मेरी बजट लाइन BL से बाहर है। BL मेरी इनकम लाइन है, बजट लाइन है, या मेरी परचेजिंग एबिलिटी है, यानी मेरा पोटेंशियल है कि मैं क्या गुड्स बाय कर सकता हूँ। BL एक लाइन, स्ट्रेट लाइन को अगर आईसीज को इग्नोर कर दें, सिर्फ IC3 को इमेजिन करें, ना IC1 ना इधर ना IC2 है, जस्ट इमेजिन इनकम ये है BL और IC3 आपकी इनकम लाइन से बाहर है। तो 20,000 इनकम में 60,000 की बाइंग पॉसिबल नहीं है। तो IC3 आपकी BL इनकम में कभी भी अचीव नहीं हो सकता अनलेस कि आपकी इनकम 60,000 हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम IC1 पे चलते हैं।
IC1 जो है ये आप ध्यान में रखिएगा, IC1 पे यूटिलिटी U1 मिल रही है, IC2 पर यूटिलिटी U2 मिल रही है और IC3 पर यूटिलिटी U3 मिल रही है। U3 यूटिलिटी रियलिस्टिक नहीं है, हम अचीव नहीं कर सकते, हमारी इनकम से बाहर है। अब हमने ये देखना है IC1 और IC2 में से हायर पॉसिबल IC कौन सा है, ठीक है। तो IC1 पर यूटिलिटी U1 है, क्या U1 मैक्सिमम यूटिलिटी है, या IC2 पर जो यूटिलिटी U2 मिल रही है वो मैक्सिमम है। और इसके बाद हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग प्रिंसिपल को भी साथ रिलेट करके देखना है। तो IC1 पर जब चलेंगे तो IC1 के ऊपर आपने देखा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं A1 से लेकर A6 तक। हमें पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लिए जाने वाले डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उन पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम। तो A1 पॉइंट ले लें, A2 ले लें, A3 ले लें, A4 ले लें, A5 ले लें, A6 ले लें, सब पर यूटिलिटी फंक्शन U1 है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन K1 आपको मिलेगा। अच्छा, पॉइंट A1 पर अगर आप देखें जितनी आपकी इनकम है उतने ही आपके एक्सपेंडिचर्स। पॉइंट A1 पर इंडिफरेंस कर्व 1 पर मैं कह रहा हूं। इसी तरह पॉइंट A6 पर आप ऑब्जर्व करें, जितनी आपकी इनकम है उतने ही आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। पॉइंट A1 और A6 पर दोनों पॉइंट्स के ऊपर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन K1 ही है, ठीक है। लेकिन आपकी लेफ्ट इनकम क्या है, 0। तो आप इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला प्रिंसिपल, उसमें जो प्रोसेस हमने किया था वो आपको याद होगा कि इनकम जब हम स्पेंड करते थे X और Y पर, तो हमारी लेफ्ट इनकम क्या होनी चाहिए थी, 0। पॉइंट A1 पर भी लेफ्ट इनकम 0 है और पॉइंट A6 पर भी लेफ्ट इनकम 0 है। लेकिन पॉइंट A1 और A2 पर क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है? डेफिनेशन क्या है जी, कि बजट लाइन शुड टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। तो क्या A1 पे इंडिफरेंस कर्व 1 बजट लाइन के साथ टेंजेंट कर रहा है? A1 पर टेंजेंट नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है डेफिनेशन वायलेट हो गई। पॉइंट नंबर A6 पर देखें, यानी कॉम्बिनेशन A6 पर देखें, आपको नजर आ रहा है वहां पर भी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टेंजेंट नहीं कर रहा बल्कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पता ये चला A1 और A6 पर लेफ्ट इनकम जरूर 0 है, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ओके, ये तो वायलेशन नजर आ गई। इसके अलावा क्या वायलेशन हो रही है? अगर हम बजट लाइन BL के अंदर इंडिफरेंस कर्व IC1 का कॉम्बिनेशन A1 या A6 लेने के बजाय A2, A3, A4, A5, ये 3 या 4 कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन अवेल करें, तो ये इनकम से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर नीचे चले गए और इनकम हमारी ऊपर है। तो ये शेडेड एरिया इनकम और इंडिफरेंस कर्व 1 के दरमियान आपको नजर आ रहा है, शेडेड एरिया। तो ये क्या बता रहा है कि ये शेडेड एरिया ये बता रहा है कि अगर इंडिफरेंस कर्व हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं और बजट लाइन हमारी इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप, यानी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर थोड़े है, मतलब ये कि हमारे इनकम सेव हो रही है। तो जब इनकम बच रही है कॉम्बिनेशन A2, A3, A4 या A5 लेने से, जबकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन K1 ही मिलना, बेशक A2 कॉम्बिनेशन ले लो, A1 ले लो, A6 ले लो, लेकिन A1 और A6 के अलावा A2 से लेकर A5 तक कोई कॉम्बिनेशन ले तो इनकम सेव होती है। इसका मतलब ये है कि इनकम अगर A1 और A6 में से कोई कॉम्बिनेशन ले तो ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं होती। मतलब ये कि इस इनकम से हमें इससे बेहतर इंडिफरेंस कर्व मिल सकता है, तो इसीलिए हम इस इंडिफरेंस कर्व को अबेंडन करेंगे और इससे बेहतर इंडिफरेंस कर्व IC2 ऑब्टेन करेंगे। जब IC2 पर गए तो हमें पता चला कि IC2 के एक पॉइंट को हम अचीव करने की एबिलिटी रखते हैं, विच इज पॉइंट E। पॉइंट E से IC2 अपवर्ड जाने कोई पॉइंट कॉम्बिनेशन का ले लें, हम अचीव नहीं कर सकते इनकम BL के अंदर। और BL इनकम में पॉइंट E, IC2 पर जो पॉइंट E है, पॉइंट E से IC2 डाउनवर्ड जाने कोई पॉइंट ले ले IC के ऊपर, वो भी बजट लाइन BL के अंदर हम अचीव करने की एबिलिटी नहीं रखते। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिफरेंस कर्व 2 के किसी एक पॉइंट E को हम अचीव कर सकते हैं और इसके अलावा इस इंडिफरेंस कर्व पर कोई पॉइंट अचीव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ BL इनकम से हमने मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व अचीव कर लिया, विच इज IC2। ठीक है, IC2 पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या जी, K2।
अब K2 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन K1 से बेहतर है और यही सुपीरियर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। पॉइंट ई को गौर से देखें तो पता चला बजट लाइन पॉइंट ई पर IC2 इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट भी कर रहा है, तो टेंजेंसी वाली डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी। और इसी पॉइंट ई पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन स्लोप की सूरत में ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की स्लोप भी यहाँ पे कॉमन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि बजट लाइन IC2 को पॉइंट ई पर टेंजेंट भी कर रहा है और इनकी स्लोप्स भी कॉमन होंगी, लिहाजा IC2 जो है ये हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व हो गया हमारा। सो यहाँ नोट की सूरत में मेंशन कर दिया गया कि IC2 इज हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, और इसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल हो गई है जी एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ बजट लाइन के। ठीक है जी, तो ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट नंबर 2 सिर्फ आपके लिए रीड कर देता हूँ और इसके बाद आपके क्वेश्चंस टेक अप करता हूँ और फिर क्लास फाइंड अप कर देता हूँ। बिकॉज पॉइंट ई लाइज ऑन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व 2, here absolute slope of budget line has become equal to absolute slope of higher possible indifference curve। तो ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसमें और ज्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आपको ये लेक्चर कंप्लीट करवा रहा हूँ। इससे आगे मैं इंशाल्लाह नए चैप्टर की तरफ चलूंगा। मेरी तरफ से ये मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके क्वेश्चंस टेकअप करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज रेज योर हैंड एंड आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चंस। जी मिस मिनाहिल। सर ये पॉइंट ई पर तो इनकम और एक्सपेंसेस इक्वल है ना? पॉइंट ई पर यस। तो जो इंडिफरेंस कर्व 3 है तो उस पर इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे। IC3 बेसिकली एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डिमांड है ना बेसिकली, उस पर एक्सपेंडिचर्स होने हैं। तो BL इनकम आपकी एबिलिटी टू परचेज है, तो BL इनकम लेस है, IC3 अबव है। तो IC3 एक्सपेंसेस ज्यादा है और IC1 जो है एक्सपेंसेस कम है, ऐसे कम है। जी जी, चलिए थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन जी प्लीज? आज स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम है जी। अबूजर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। क्विकली शाबाश सर वो आपने क्या कि IC3 पे जो कंज्यूमर की इनकम होगी वो 20,000 होगी। 20,000 मैंने ये कहा BL इनकम हमारे पास अवेलेबल है जो कि 20,000 है। IC3 हम परचेज कर सकते हैं विद इनकम 60,000। तो चूंकि एक्चुअली पॉकेट में 20,000 है, IC3 60,000 वाली रेंज वाला इंडिफरेंस कर्व है, तो वो हमारी रेंज से बाहर है। मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो IC2 पे हमारे पास कितनी इनकम होगी? IC2 हमारी इनकम में आ गया ना। IC2 का एक पॉइंट हमने अचीव किया, सारे पॉइंट्स नहीं अचीव कर सकते। सारे पॉइंट्स हमारी इनकम से अबव है। आप देख सकते हैं पॉइंट ई से ऊपर की तरफ IC2 की तरफ देखें तो IC2 का कोई पॉइंट हम अचीव नहीं कर सकते इनकम BL के अंदर। ई पॉइंट के अलावा IC2 के नीचे की तरफ देखें जरा, कोई पॉइंट नहीं अचीव कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि IC2 का सिर्फ एक पॉइंट हमने अचीव कर लिया। तो एक पॉइंट अचीव करने का मतलब ये है कि जो बाकी पॉइंट्स के ऊपर बाकी कॉम्बिनेशंस पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट ई पे है। यानी इस इनकम में इससे बेहतरीन इंडिफरेंस का हम अचीव नहीं कर सकते थे, ये इसका मतलब है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है जी प्लीज बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? ले जी, थैंक यू वेरी मच। और मेरा आज का लेक्चर हो गया जी कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है जी। जी आसिम साहब प्लीज बताएं। सर वालेकुम अस्सलाम। सर लेक्चर तो आप बड़ी जबरदस्त तरीके से समझाते हैं, समझ भी आता है, लेकिन जैसे ही ये क्लास के 15 मिनट आगे वाले थोड़े से ऊपर होने लगते हैं ना, यकीन माने पिछला भी कुछ करते हैं। इसका मैं क्या कर सकता हूँ सर? सर जी थोड़ा स्लो कर दें, पता है ऑनलाइन सिस्टम है तो वो उस तरह से तो दूसरा चैप्टर हमारा रिकॉर्डिंग नहीं होगा। चल रही। चले बहरहाल ठीक है, इंशाल्लाह ये अगली क्लास में। जी सर सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। तो उसने कहा था आपको बता दूं। क्या कह रहे हैं? अक्सा जो है ना वो ज्वाइन नहीं कर पाई है इंटरनेट की वजह से, उसका इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो चले उसने ठीक कहा है, आपको बता दूं। नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सर। सर ये
सेंड कर दें सर स्लाइड्स। जी जी इंशाल्लाह ये कंप्लीट होती है मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सो मच।